Good morning, students. In today's lecture, I will discuss about mechanism of nucleophilic aromatic substitution reactions in aryl halides and relative reactivity of alkyl, vinyl, phenyl, allyl and benzyl halides towards nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic aromatic substitution reaction occurs by two mechanisms. One is bimolecular displacement mechanism, which occur under when attack of milder nucleophile or attack of milder bases takes place on aryl halide. Bimolecular displacement mechanism occurs only in activated aryl halides, which means aryl halides which contain electron withdrawing group at ortho and para position. So bimolecular displacement reaction किसके केस में होगी? जब आपके जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो माइल्डर होंगे, यानी बेस जो है आपका माइल्डर होगा और जो आपका एराइल हैलाइड है वो क्या होगा? एक्टिवेटेड होगा. एक्टिवेटेड कब होगा? जब उसके ऊपर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड होंगे. कौन सी पोजीशन पे? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. द नेक्स्ट मैकेनिज्म इज एलिमिनेशन एडिशन, और जिसको हम कहते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म. The reaction elimination or addition mechanism or benzyne mechanism involves relatively strong nucleophiles or bases. जो bimolecular displacement mechanism था वो क्या था? milder nucleophile और bases के presence में होता है. And elimination addition mechanism occurs under relatively strong nucleophile, under the presence of relatively strong nucleophiles or bases. और ये मैकेनिज्म कब होगा? जब एराइल हैलाइड जो होंगे अनएक्टिवेटेड होंगे, यानी उनपे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं होगा, या फिर जो आपका एराइल हैलाइड्स है उस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच होंगे जो उसको क्या करेंगे? डीएक्टिवेट करेंगे. सो द रिएक्शन nucleophilic aromatic substitution reaction in aryl halides takes place by two mechanisms. First is bimolecular displacement mechanism and other one is elimination addition mechanism. Bimolecular displacement mechanism occurs when nucleophiles are relatively milder or bases are relatively milder and your aryl halides is activated due to the presence of electron withdrawing group at ortho or para position. While elimination addition mechanism takes place under the presence of strong base and when your aryl halide is deactivated or unactivated, or when unactivated or aryl halides contain electron donating groups at ortho and para position. First is bimolecular displacement mechanism. This mechanism takes place in two steps. In first step, the nucleophile attack at the carbon containing the halogen to form an intermediate carbanion which is stabilized by resonance. पहला स्टेप क्या है? जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा किसके ऊपर? उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर क्या है? हैलोजन अटैच्ड है. अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया. न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज कंटेनिंग एटम और मॉलिक्यूल. इस पे अटैक करेगा. जो कार्बन बेंजीन का रिंग का डबल बॉन्ड है शिफ्ट हो जाएगा ऑन नेक्स्ट कार्बन. तो ये जो नेगेटिवली चार्ज है कार्बनाइन बना, ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. Now, due to the formation of carbanion, hybridization of carbon changes from sp2 to sp3. जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 से किस में चेंज हो जाएगी? sp3 में. अब यहाँ पे जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 में चेंज होगी तो जो एरोमेटिक कैरेक्टर है बेंजीन रिंग का वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉयड हो जाएगा. अब एरोमेटिक कैरेक्टर क्योंकि बेंजीन रिंग का डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये अनस्टेबल हो रही है, तो ये स्टेप क्या होगा? स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन कंटेनिंग हैलोजन टू फॉर्म कार्बनायन विच इज
resonance stabilized. Due to the formation of carbon and hybridization of carbon having halogen and nucleophile changes from sp2 to sp3, and there is loss of aromatic character of the benzene ring. So the step is slow and rate determining step. Next step is the intermediate carbon ion loses halide ion to give the nucleophile substituted product in which the aromatic character is again regained. So the step is fast and it has no effect on the rate of reaction. जो second step है इसमें क्या हो रहा है, halide ion का क्या हो रहा है, loss हो रहा है और आपको क्या मिल रही है, nucleophile substituted बेंजीन रिंग. तो ये इस स्टेप में क्या हो रहा है, एरोमेटिक कैरेक्टर वापस क्या हो रहा है, रीगेन हो रहा है और जो आपको स्टेबल अराइल न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट क्या मिल रही है, बेंजीन मिल रही है, रिंग मिल रही है. तो ये स्टेप क्या हो जाएगा, फास्ट, और ये इस स्टेप का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. तो रिएक्शन क्या हो रही है, दो स्टेप में हो रही है. फर्स्ट स्टेप हो रहा है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड सेकेंड स्टेप जो है एलिमिनेशन ऑफ हैलाइड आयन. अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ आपका है कार्बन आयन, इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, यानी कि जो एराइल हैलाइड का बॉन्ड टूटेगा और ये न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ पे क्या कर रहा है, अटैक हो रहा है. यहाँ पे क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर का लॉस हो रहा है, इस वजह से ये स्टेप क्या होगा, स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग. इस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, इस वजह से स्टेप क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. सेकेंड स्टेप में क्या होगा, लॉस ऑफ हैलाइड आयन, एक्स नेगेटिव का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होगा, वापस रीगेन होगा, इस वजह से इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी और ये स्टेप फास्ट होगा और इस स्टेप का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन. सो द फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. अब ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें पहले क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फिर क्या हो रहा है, एलिमिनेशन ऑफ हैलाइड आयन, और जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप है. इनके क्या एविडेंस है जो इस मैकेनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं. द फर्स्ट एविडेंस इज in support of bimolecular displacement mechanism is element effect. Element effect means the effect of particular element on the reactivity of the compound, कि किसी एलिमेंट का क्या इफेक्ट होगा रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड पे. आपने SN1 एंड SN2 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में देखा था कि एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, कि एल्काइल आयोडाइड्स जो हैं वो मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू एल्काइल ब्रोमाइड्स. देन रिएक्टिविटी किसकी होगी, एल्काइल क्लोराइड्स, और लीस्ट रिएक्टिव होते थे एल्काइल फ्लोराइड्स. लेकिन जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एराइल हैलाइड्स में है, इसमें जो डिफरेंट एराइल हैलाइड्स हैं उनकी रिएक्टिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. देयर इज लिटिल डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ एराइल आयोडाइड्स, एराइल ब्रोमाइड्स एंड एराइल क्लोराइड्स. तो ये क्या सजेस्ट करता है कि रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड. जो कार्बन हैलोजन के बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एराइल हैलाइड्स में वो डिपेंड नहीं करती. अगर कार्बन हैलोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे ये रिएक्शन डिपेंड करती तो एल्काइल हैलाइड्स जो आयोडाइड्स हैं वो मोर रिएक्टिव होते और एल्काइल क्लोराइड्स या एल्काइल ब्रोमाइड्स हैं आपके वो क्या होते, लेस रिएक्टिव होते. लेकिन जो एल्काइल आयोडाइड्स नहीं, एराइल आयोडाइड्स, ब्रोमाइड्स और क्लोराइड्स जो है उनकी रिएक्टिविटी में भी डिफरेंस आता अगर कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्लीवेज क्या होती, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती. लेकिन जो आपके एराइल आयोडाइड्स हैं, एराइल ब्रोमाइड्स हैं, एराइल क्लोराइड्स हैं या एराइल फ्लोराइड्स हैं, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑलमोस्ट क्या है, सेम है. सो ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड. Thus, rate determining step does not involve the cleavage of carbon halogen bond. तो ये फर्दर इसको
प्रूव करता है कि जो आपका सेकेंड स्टेप है वो फास्ट और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है कार्बन हैलोजन बॉन्ड का। अगर कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्लीवेज पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती तो जो आपके एराइल आयोडाइड्स हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते, फिर एराइल ब्रोमाइड्स, फिर एराइल क्लोराइड्स, और लीस्ट रिएक्टिव क्या होते हैं, एराइल फ्लोराइड्स। लेकिन इनकी रिएक्टिविटी में एराइल हैलाइड्स हैं, उनकी रिएक्टिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और इससे ये पता चलता है कि जो रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड है वो इंडिपेंडेंट है क्लीवेज ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। कार्बन हैलोजन बॉन्ड की क्लीवेज पे रिएक्टिविटी डिपेंड नहीं करी। सो द स्टेप rate determining step does not involve the cleavage of carbon halogen bond. Rate of nucleophilic aromatic substitution depends upon the rate of formation of carbanion. अब किस स्पीड से कार्बनाइन बन रहा है, कितना स्टेबल है, उसके ऊपर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड कर रही है। जितना कार्बनाइन ज्यादा स्टेबल होगा उतना इजिली वो बनेगा, उतना ही रिएक्टिव क्या होगा आपका एराइल हैलाइड, यहाँ एराइल हैलाइड आएगा। सो ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन, ग्रेटर इज द ईज ऑफ इट्स फॉर्मेशन एंड मोर रिएक्टिव इज द एराइल हैलाइड। अब ये जो एराइल हैलाइड है इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। ये एराइल हैलाइड है, इसमें नाइट्रो, जो सेकंड एराइल हैलाइड है इसमें नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है जो क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और थर्ड में क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप अटैच्ड है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप जो क्या करेगा, जो कार्बनाइन बनेगा उसको स्टेबलाइज कर देगा ड्यू टू -R एंड -I तक। नाइट्रो ग्रुप का आपको पता है कौन सा इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन रिंग से विड्रॉ करेंगे यानी नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देंगे और कार्बनाइन को स्टेबलाइज कर देंगे। तो सेकंड जो कार्बनाइन है जिसमें नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है वो मोर स्टेबल कार्बनाइन है। जो थर्ड कार्बनाइन है जिसमें OCH3 ग्रुप अटैच्ड है, अब OCH3 ग्रुप ड्यू टू रेजोनेंस यानी ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर है, वो रिंग को डोनेट कर देगा, तो +R इफेक्ट के कारण रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा, तो और कार्बनाइन को क्या कर देगा डिस्टेबलाइज कर देगा। दस कार्बनाइन 3 इज लेस स्टेबल देन कार्बनाइन 1। और कार्बनाइन जो आपका 1 है इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन, ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है ना कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है। तो सबसे स्टेबल कार्बनाइन आपका कौन सा हो गया सेकंड, जिसपे क्या है नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है। ये रिंग से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा यानी नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देगा थ्रू -I एंड -R इफेक्ट, और इसको क्या कर देगा स्टेबलाइज कर देगा। यहाँ थर्ड केस के केस में क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा रिलीज करेगा टुवर्ड्स द रिंग ड्यू टू +R इफेक्ट। इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, रिंग को डोनेट करेगा, +R इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी और कार्बनाइन क्या हो जाएगा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो सबसे स्टेबल कार्बनाइन आपका हो गया 2, फिर 1 और फिर 3। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन इज सेकंड, 1 and 3. So para-nitrochlorobenzene is more reactive than chlorobenzene, which in turn is more reactive than para-chloroanisole. तो जो आपकी रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन। जो कार्बनाइन जितना स्टेबल है वो उतना इजिली बनेगा और उतनी फास्ट वो रिएक्शन होगी, यानी वो जो आपका हैलाइड होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। Presence of electron withdrawing group at ortho and para position with respect to halogen activate the benzene rings towards nucleophilic substitution reaction. अब जो बेस ने उसने किस पे अटैक किया, उस कार्बन पे जिसके ऊपर हेलोजन अटैक है अटैच्ड है, तो नेक्स्ट कार्बन पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा -I और -R, ये -R इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप के ऊपर भी क्या हो जाएगा डिस्पर्स हो जाएगा। और ये वाली जो स्ट्रक्चर जिसमें नाइट्रो ग्रुप थ्रू -R इफेक्ट
डिस्पर्स कर रहा है नेगेटिव चार्ज को। ये केवल ऑर्थो और पैरा के केस में होती हैं, मेटा के केस में नहीं होती। इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन, वो एक्टिवेट करते हैं एराइल हैलाइड्स को टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड जो मैकेनिज्म है वो क्या है, एलिमिनेशन, एडिशन और बेंजाइन मैकेनिज्म। पहले वाला क्या था, पहले एडिशन हो रही थी फिर एलिमिनेशन। फर्स्ट स्टेप क्या था उसका, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन में पहले एडिशन हो रही थी, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, फिर उसके बाद क्या हो रही थी, एलिमिनेशन हो रही थी, हैलाइड आयन का लॉस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या स्टेप है, एलिमिनेशन, एडिशन, यानी पहले एलिमिनेशन होगा फिर एडिशन होगा, और इंटरमीडिएट इसमें क्या बनता है, बेंजाइन बनता है, इसलिए इसको और हम क्या बोलते हैं, बेंजाइन मैकेनिज्म। तो आपका सेकेंड मैकेनिज्म जो है वो कौन सा है, एलिमिनेशन, एडिशन और बेंजाइन मैकेनिज्म। अगर रिंग के ऊपर कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच नहीं है, रिंग पे एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है NO2 हो गया जैसे, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, या और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होता है जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, वो एक्टिवेट करता है रिंग को टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके ऊपर कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हो रही है, तो रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से होगी, एलिमिनेशन, एडिशन और बेंजाइन मैकेनिज्म। The reaction occur by entirely different mechanisms called benzyne mechanism. बेंजाइन मैकेनिज्म में जैसे आपको बताया, पहला स्टेप क्या है, एलिमिनेशन है, और दूसरा स्टेप क्या है, एडिशन है। इन एलिमिनेशन स्टेप, अमाइड आयन एब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम टू फॉर्म ए कार्ब अनायन। जो आपका हेलोजन है उसके रिस्पेक्टिव जो ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन है उस पे क्या करेगा, जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है वो अटैक करेगा, H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा और क्या बनाएगा, कार्बन आयन बनाएगा। अब ये जो कार्बन आयन बनाया, इससे क्या होगा, लॉस होगा किससे, हैलाइड आयन का, और क्या बनेगा, बेंजाइन बनेगा। बेंजाइन आपका क्या होगा, इंटरमीडिएट। सो द अमाइड आयन एब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन टू फॉर्म कार्बन आयन विच देन लूजेस हैलाइड आयन टू फॉर्म बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो ये स्टेप जो हो गया आपका क्या हो गया, एलिमिनेशन स्टेप। तो पहला स्टेप क्या हो गया, एलिमिनेशन स्टेप, जिसमें अटैक होगा किसका, स्ट्रॉन्ग बेस का ऑन ऑर्थोहाइड्रोजन्स विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन टू फॉर्म कार्बन आयन, और फिर उस कार्बन आयन से लॉस होगा हैलाइड आयन का टू फॉर्म बेंजाइन। नेक्स्ट स्टेप इज एडिशन स्टेप। In this step, nucleophilic attack of amide ion takes place on benzyne to again to form a carbon ion. अब इस स्टेप में फिर क्या होगा, बेंजाइन है आपका, इस पे जो होगा न्यूक्लियोफाइल होगा उसका अटैक होगा और आपको क्या मिलेगा, कार्बन आयन मिलेगा। अब ये जो कार्बन आयन बनना, वो जो आपका लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट था उसके से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और वापस क्या होगा, NH2 का लॉस हो जाएगा और आपको मिलेगा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड एराइल, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो एडिशन स्टेप में क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा किसके ऊपर, बेंजाइन के ऊपर, उससे क्या बनेगा, कार्बन आयन बनेगा। कार्बन आयन फिर अटैक करेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन फ्रॉम अमोनिया टू यील्ड न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो पहला स्टेप क्या था, एलिमिनेशन स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, एडिशन स्टेप। ये दिखा रखा है यहाँ पे, ये ब्रोमीन है, इसके रिस्पेक्टिव दो पोजीशंस, ये ऑर्थोहाइड्रोजन है, अमाइड आयन ऑर्थोहाइड्रोजन पे अटैक करेगा, कार्बन आयन बनाया, कार्बन आयन से लॉस होगा किसका, हैलाइड आयन का, और आपको क्या मिल जाएगी, बेंजाइन। अब इस बेंजाइन पे अटैक होगा फिर बेस का या न्यूक्लियोफाइल का, आपको फिर मिलेगा कार्बन आयन। अब बेस का अटैक दोनों तरफ पॉसिबल है, इस तरफ भी जा सकता है और इस वाली पोजीशन पे, दोनों पोजीशन पे हो सकता है। अगर थर्ड पोजीशन पे हुआ तो आपको क्या मिलेगी, मेटाटोलिडीन, और अगर यहाँ फोर्थ पोजीशन पे हुआ तो आपको क्या मिलेगी, पैराटोलिडीन। तो बेंजाइन के जो आपका बेंजाइन बना उसके जो ट्रिपल बॉन्ड है उस पे अटैक जो न्यूक्लियोफाइल का है दोनों तरफ पॉसिबल है, और आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी मेटाटोलिडीन एंड पैराटोलिडीन। अब इस मैकेनिज्म के लिए
कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको फेवर कर रहे हैं कि वो एराइल हैलाइड्स जिन पे कोई भी ऑर्थो हाइड्रोजन्स नहीं है वो सोडामाइड से रिएक्ट नहीं करते, यानी वो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट नहीं करते। एराइल हैलाइड्स विच डू नॉट हैव ए हाइड्रोजन ऑर्थो टू हेलोजन एटम डू नॉट रिएक्ट अंडर सिमिलर कंडीशंस। कंडीशंस क्या थी? स्ट्रॉन्ग बेस इन लिक्विड अमोनिया, सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया। अब यहाँ पे जो 3 मिथाइल एनिजोल है, इसके पास ब्रोमीन के रिस्पेक्टिव दोनों जो ऑर्थो पोजीशन है वो क्या है? सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से जो ये बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन नहीं होती। नेक्स्ट है आइसोटोपिक इफेक्ट। अगर हमने एक क्या ले ली? ड्यूटीरेटेड बेंजीन ले ली, जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे क्या है? ड्यूटीरियम है। दूसरा हमने क्या ले ली? ब्रोमोबेंजीन ले ली, जिसमें सिंपल क्या है? हाइड्रोजन है। अब सबसे पहले अटैक क्या होता है आपका न्यूक्लियोफाइल का, जो NH2 नेगेटिव का, अमाइड आयन का ऑन हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। तो कार्बन ड्यूटेरियम या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होएगा उतना उसको तोड़ना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। तो कार्बन ड्यूटेरियम जो बॉन्ड है वो मोर स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इस वजह से जो ब्रोमोबेंजीन है वो उसकी रिएक्शन क्या होगी? फास्टर होगी कंपेयर टू ड्यूटेरेटेड बेंजीन। यानी ड्यूटेरेटेड बेंजीन जो है वो स्लोली रिएक्ट करेगी कंपेयर टू ब्रोमोबेंजीन, जिसमें क्या है? नॉर्मल हाइड्रोजन है। नॉर्मल हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है कंपेयर टू कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड के लिए तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। इस वजह से जो ब्रोमोबेंजीन है वो फास्टली रिएक्ट करेगी और ड्यूटेरेटेड बेंजीन है वो स्लोली रिएक्ट करेगी। नेक्स्ट जो एविडेंस है वो क्या है? ट्रेसर टेक्निक्स। ट्रेसर टेक्निक में हमने क्या ले ली? लेबल्ड क्लोरोबेंजीन ले ली। यानी ये जो कार्बन है ये कार्बन 14 है, इस वजह से इसको बोलेंगे लेबल्ड क्लोरोबेंजीन। जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा है वो क्या है? लेबल्ड है। अब इस लेबल्ड क्लोरोबेंजीन को जब हम ट्रीट करेंगे सोडामाइड से ट्रीट किया तो इसके रिस्पेक्टिव ये क्या है? ऑर्थो हाइड्रोजन है, यहाँ से ऑर्थो हाइड्रोजन का लॉस होएगा, फिर क्या होगा? Cl नेगेटिव का लॉस हो जाएगा और आपका क्या मिलेगी? बेंजाइन मिलेगी। अब सोडामाइड का अटैक होगा अगेन ऑन बेंजाइन। अब अटैक क्या है? उस कार्बन पे भी हो सकता है जो लेबल्ड है और नेक्स्ट कार्बन पे भी हो सकता है, और दोनों की क्या है? इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो हमें क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रेसर टेक्निक की हेल्प से भी, या ट्रेसर टेक्निक भी, ये जो रिएक्शन हो रही है वो बेंजाइन मैकेनिज्म से हो रही है। इस ट्रेसर टेक्निक के थ्रू भी हम इसको शो कर सकते हैं कि ये जो रिएक्शन हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म। इस ट्रेसर टेक्निक में हम क्या यूज करते हैं? जो आपका कार्बन जिसके ऊपर हेलोजन अटैच्ड है वो क्या कर देते हैं? लेबल ले लेते हैं, यानी कार्बन 14 ले लेते हैं। फिर one in which NH2 group was linked to labeled carbon and another in which NH2 group was present on a carbon ortho to the labeled carbon, both products are formed। कि जब हमने इसकी रिएक्शन कराई किससे? सोडामाइड से, हमारा बेंजाइन बना। अब बेंजाइन का अटैक दोनों पोजीशन पे पॉसिबल है, जिसपे लेबल्ड कार्बन है उस पे भी और उसके नेक्स्ट कार्बन पे भी, ऑर्थो कार्बन पे भी। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो हमें क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, जिसमें एक पे तो क्या होगा? लेबल्ड कार्बन के ऊपर आपका NH2 ग्रुप अटैच्ड है, दूसरे में क्या होगा? जो आपका लेबल्ड कार्बन है उससे नेक्स्ट कार्बन पे, ऑर्थो कार्बन पे आपका जो NH2 ग्रुप है वो अटैच्ड होगा। तो ये भी शो करता है रिएक्शन किसके थ्रू है? थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म। फिर जो हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है उसके थ्रू भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि रिएक्शन किसके थ्रू हो रही है? थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म। हमने क्या लिया? पैराक्लोरोटोलिन ली, इससे हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, मेटाटोलिडीन एंड पैराटोलिडीन। वो तभी बन सकता है जब हमारा इंटरमीडिएट क्या होगा? बेंजाइन। हमने फिर क्या किया? पैराक्लोरोटोलिडीन की रिएक्शन कराई सोडामाइड से, आपका क्या बना? ऑर्थो पोजीशन से H पॉजिटिव का लॉस हो गया, कार्बन आयन बना, फिर Cl नेगेटिव का लॉस हो जाएगा, आपका क्या बन जाएगा? बेंजाइन। अब अटैक क्या है? दोनों तरफ पॉसिबल है, NH2 यहाँ पे भी जा सकता है,
मेटा टू CH3 और पैरा टू CH3। तो ये दोनों प्रोडक्ट दोनों के इक्वल चांसेस हैं। अगर मेटा टू CH3 जा रहा है तो आपका क्या बनेगा, मेटाटोलिडीन बनेगा, और पैरा टू CH3 जा रहा है NH2 ग्रुप तो आपका क्या बनेगा, पैराटोलिडीन। लेकिन मेटाटोलिडीन जो है उसकी कंसंट्रेशन या ये ज्यादा अमाउंट में होगा कंपेयर टू पैराटोलिडीन, क्योंकि जो मेटाटोलिडीन जब बनेगा, ये जो आपका कार्बन आयन बनेगा ये बेटर स्टेबलाइज्ड है बाय प्लस साई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। ये इसके पैरा है तो ये बेटा स्टेबलाइज्ड होगा। ये CH3 के मेटा पोजीशन पे कार्बन आयन है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये लेस स्टेबलाइज्ड है ड्यू टू प्लस साई इफेक्ट। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो मेटाटोलिडीन होगा, और जो पैराटोलिडीन है वो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी कंपेयर टू मेटाटोलिडीन। तो डिफरेंट एविडेंस थे जिसके थ्रू हम जो बताते थे कि जो रिएक्शन हो रही है वो किसके थ्रू है, थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म। और बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन कब होती है, जब हमारा न्यूक्लियोफाइल या बेस क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जो हमारा एराइल हैलाइड है वो डीएक्टिवेटेड होगा या अनएक्टिवेटेड होगा। यानी जो आपका एराइल हैलाइड है उसके ऊपर या तो कोई ग्रुप अटैच ना हो, या फिर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होंगे, जो रिंग पे रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और उसको डीएक्टिवेट करेंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स वर्सेस विनाइल एंड एराइल हैलाइड्स। जो आपके विनाइल हैलाइड्स हैं वो लेस रिएक्टिव है या उनकी लो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या होती है, थ्रू कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। कार्बोकैटायन मैकेनिज्म में जब ये विनाइल हैलाइड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ से Cl नेगेटिव का लॉस होगा तो ये क्या बनेगा, विनाइल कार्बोकैटायन, विनाइल कैटायन बनेगा। अब विनाइल कैटायन, आपने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जब फर्स्ट सेम में किया था तो वहां कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ी थी, तो उसमें पढ़ा था कि विनाइल कैटायन जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, फिनाइल कैटायन क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो आपका ऑर्बिटल है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि वो ऑर्बिटल जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो परपेंडिकुलर है पाई बॉन्ड के, तो इस वजह से वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन रेजोनेंस। तो इसके कारण विनाइल कैटायन क्या है, स्टेबलाइज नहीं होते ड्यू टू रेजोनेंस। सेकेंड रीजन क्या है कि कार्बन क्या हो जाएगा, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज। sp हाइब्रिडाइज कार्बन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो ये पॉजिटिव चार्ज sp हाइब्रिडाइज कार्बन पॉजिटिव चार्ज डेवलपमेंट को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। इस वजह से जो विनाइल कैटायन है वो लेस स्टेबल होंगे, और इसी कारण जो आपके विनाइल हैलाइड्स हैं उनकी लेस रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स, या लो रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला क्या हो गया, एक तो ये अनस्टेबल हो गया क्योंकि sp कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज है, sp क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से विनाइल कैटायन क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। दूसरा क्या होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसका ये पाई बॉन्ड है, और ये जो आपका कार्बोकैटायन बना, इसमें ये जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इसके परपेंडिकुलर है ऑर्बिटल के, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगी, और रेजोनेंस के कारण क्या होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी। इस कारण जो विनाइल हैलाइड्स हैं वो लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शंस। ड्यू टू सेम रीजंस जो एराइल हैलाइड्स हैं यानी के ब्रोमोबेंजीन, ये भी लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN1 मैकेनिज्म। यहाँ पे भी क्या होगा, आपका फिनाइल कार्बोकैटायन बनेगा। सेम केस यहाँ पे हो जाएगा, कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो रेजिस्ट करेगा, यानी हाईली अनस्टेबल होगा। दूसरा रीजन क्या होगा, जो जिस ऑर्बिटल में वैकेंट p ऑर्बिटल में जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा रिंग जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके, इस वजह से डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगी, और इस कारण जो आपके एराइल हैलाइड्स हैं वो लेस रिएक्टिव हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN1 मैकेनिज्म। नेक्स्ट जो है इनकी रिएक्टिविटी,
SN2 मैकेनिज्म से भी हम देखें तो क्या है, लो रिएक्टिविटी है। SN2 मैकेनिज्म किसके थ्रू होता है, थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। तो जिनकी जो आपके विनाइल या एराइल हैलाइड्स हैं ये लेस रिएक्टिव हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN2 मैकेनिज्म। क्या रीजन है, किस वजह से, ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो रहा है, तो जो ऑप्टिमल ट्रांजिशन स्टेट ज्योमेट्री है SN2 रिएक्शन की वो इन केस में नहीं होगी, क्योंकि बैक साइड अटैक डिफिकल्ट होगा। जो बेंजीन रिंग है वो ब्लॉक करेगी अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बैक साइड, और इस वजह से जो एराइल हैलाइड्स हैं वो लेस रिएक्टिव होंगे। बैक साइड अटैक क्या हो गया, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग ब्लॉक करेगी न्यूक्लियोफाइल को टुवर्ड्स बैक साइड अटैक, और इसके कारण जो इनकी रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विनाइल हैलाइड्स के केस में भी सेम आ जाएगा कि विनाइल हैलाइड में भी बैक साइड अटैक क्या है, डिफिकल्ट है, क्योंकि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो डबल बॉन्ड का जो प्लेन है वो उसको प्रिवेंट करेगा फ्रॉम बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वजह से रिएक्शंस जो हो जाएंगी वो क्या होगी, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन क्या हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी। फिर जो आपके एलाइल हैलाइड्स हैं या बेंजाइल हैलाइड्स हैं इनकी रिएक्टिविटी हाई होती है कंपेयर टू विनाइल एंड सिंपल एराइल हैलाइड्स। अब इनकी रिएक्टिविटी हाई क्यों होगी, सबसे पहले हम देखेंगे इनकी रिएक्टिविटी थ्रू SN1 रिएक्शंस। SN1 रिएक्शन हो रही है थ्रू कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। कार्बोकैटायन जैसे बेंजाइल कार्बोकैटायन है, यहाँ से बेंजाइल क्लोराइड होगा, Cl नेगेटिव का लॉस हुआ तो यहाँ पे क्या बन गया, बेंजाइल कार्बोकैटायन। अब बेंजाइल कार्बोकैटायन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, या आपका एलाइल हैलाइड है, वहां से भी जब Cl नेगेटिव का लॉस होगा जो कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन जो ये आपके एलाइल और बेंजाइल हैलाइड है ये है मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। अब इनकी रिएक्टिविटी एलाइल हैलाइड्स या बेंजाइल हैलाइड्स की हाई है SN2 रिएक्शंस में भी। SN2 रिएक्शंस कौन से मैकेनिज्म से होती है, थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। In SN2 reactions, the reactivity of allyl halides mainly depend on steric factors. अब allyl ग्रुप है उसका approximately same size होता है as that of unsubstituted primary halide. तो बोथ अल्काइल हैलाइड और जो आपके एलाइल हैलाइड्स हैं दे डू नॉट प्रोवाइड एनी रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बैक साइड। जो एलाइल हैलाइड है या अल्काइल हैलाइड्स है दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, और जो न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक है उसको वो रेजिस्ट नहीं करते। तो रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ अनसब्स्टिट्यूटेड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स आर कंपेरेबल टू सिंपल एलाइल हैलाइड्स। ये एलाइल हैलाइड हो गया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ने अटैक किया, आपका Cl नेगेटिव का लॉस हो गया तो आपका डाइइथाइल 229 मेलोनेट बन गया बाय SN2 मैकेनिज्म। तो जो एलाइल हैलाइड्स हैं उनकी रिएक्टिविटी जो है वो हाई है कंपेयर टू विनाइल और फिनाइल सिंपल एराइल हैलाइड्स। नेक्स्ट जो इसका रीजन है कि एराइल हैलाइड्स रिएक्ट रैपिडली बाय SN2 मैकेनिज्म ड्यू टू ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन बाय डबल बॉन्ड थ्रू कंजुगेशन। अब ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, अब ये इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो जो नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल और ब्रोमाइड आयन के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। सो पाई सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड, जो एलाइल का पाई सिस्टम है वो कंजुगेट करेगा 2p ऑर्बिटल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज है जो कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनी। अब पाई बॉन्ड जो है वो कंजुगेट कर जाएगा इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ और इस ट्रांजिशन स्टेट को क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा और एलाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। किस मैकेनिज्म के थ्रू, बाय SN2 मैकेनिज्म और बाय SN2 रिएक्शंस।
सेम जो बेंजाइल हैलाइड्स है उनका भी सिमिलर बिहेवियर होगा एज एलाइल हैलाइड्स। बेंजाइल हैलाइड्स में भी जो पाई सिस्टम ऑफ बेंजीन रिंग है वो कंजुगेट करेगा 2p ऑर्बिटल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट थ्रू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डीलोकलाइज कर देगा थ्रू कंजुगेशन, ट्रांजिशन स्टेट को क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज, ट्रांजिशन स्टेट को क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा और बेंजाइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। That's all for today. Thank you.